Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 1 political science, and the name of the chapter is Political Theory and Introduction. Yesterday we have done about what is politics, what we study in political theory. What do you mean by freedom, equality, justice, democracy? All these issues concerning freedom, equality, democracy arise in many aspects of social life, and they all are in the progress in different sector at different paces. Equality की अगर हम बात करें, may exist in the political sphere in the form of equal rights, but it may not exist in the same extent in the economic or social spheres. People may enjoy equal political right but still be discriminated against socially because of their caste, poverty. Some people have a privileged place in society while others are deprived even of basic necessity. कुछ लोग able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable to achieve or even to go to school so they can have decent jobs in the future. For them, freedom is still a distant dream. Only think about it. Secondly, freedom is granted in our constitution. We encounter new interpretations all the time. This is a bit like playing a game. As we play chess, cricket, we learn how to interpret the rules. In the process, we discover new and broader meaning of the game itself. Similarly, अगर हम fundamental rights की बात करें, fundamental rights granted by the constitutions are continually being reinterpreted in response to new circumstances. For instance, जैसे है right to life. Right to life is interpreted by the court to include the right to livelihood, right to information, that has been granted through a new law. जो societies हैं frequently encounter new challenges, जो generate करते हैं new interpretations. Fundamental rights जो हैं granted by our constitution have been amended, expanded over time through judicial interpretations and government policies which are designed to address new problems. Second के बाद third point है, as our world changes, women discovered many dimensions of freedom as well as new threats to freedom. For instance, अगर हम बात करें global communications, जो टेक्नोलॉजी है उसने इसको ईजियर बना दिया है for activists to network with one another across the world. क्या करने के लिए? For protecting tribal cultures or forest. बट इसने enable कर दिया है terrorist criminals to network. Moreover, अगर हम बात करें इंटरनेट commerce is all set to increase in the future. इसका मतलब क्या हुआ? जो information है we give about ourselves online to buy goods, services must be protected. So, today world is known as netizens. Means क्या होता है इसका? Citizens of the internet. तो ये नेटवर्क चाहता नहीं है कि गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करे. They recognize that some form of regulation is necessary to safeguard individual security and privacy. As a result, जो questions are वो ये arise हुए हैं regarding how much freedom should be given.
कहाँ पर, कौन से एरिया में, जहां पर लोग नेट का यूज कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंट, शुड दे बी अलाउ टू unsolicited emails to stranger? Can you advertise your products in chat room? Should government be allowed to read private emails to track down terrorists? How much regulation is justified and should be regulated? Governments, some independent, regular political theory has lot to treat us about possible answer to these questions. Now let us discuss putting political theory to practice. Now we learn about different dimensions which deal with the origins, meaning, significance of political ideas. We are familiar with such a freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism. When we begin debate or argument on any topic, we usually ask, what does it mean? How does it matter? Political theorists जो हैं asked what is freedom or equality, and वो हमें provide करते हैं diverse definitions. Unlike in mathematics, where there can be one definition of a triangle or square, we encounter many definitions of equality or freedom for justice. अगर हम टर्म्स की बात करें, कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि इक्वालिटी, वो डील करती है रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग्स रेदर देन विद थिंग्स. ह्यूमन बीइंग्स, अनलाइक थिंग्स, हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी, एंड कुछ ओपिनियंस हैं जो हमें अंडरस्टैंड करते हैं, हार्मोनाइज के लिए ज़रूरी हैं. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पीपल ऑफन जंप द क्वी इन शॉप्स, डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स. समटाइम क्या होता है कि वी who do are so are told to get back in line and we feel glad. हमें खुशी होती है कि जिसने रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा है वो बैक पर आ रहा है. समटाइम दे गेट अहेड, वी फील चीटेड. We resent this because we all are equal opportunity to get good services for which we are paying. अगर हम जब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करते हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इक्वालिटी है उसका एक्चुअल मीनिंग है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, इफ देयर आर सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड डिसेबल्ड, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है ये जस्टिफाइड कर रहा है. बट हम ये भी नोटिस करते हैं कि मैनी पुअर पीपल जो है कैन नॉट गो टू द शॉप टू अ डॉक्टर, क्योंकि उनके पास मनी नहीं है पे करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए. कुछ पीपल होते हैं जो लेबर का काम करते हैं, स्टोन्स को कट करते हैं, लगिंग ब्रिक्स फॉर लॉन्ग आवर्स. अगर हम सेंसिटिव हैं, हमें ये फील करना चाहिए कि ये फेयर नहीं है कि एक सोसाइटी में कुछ मेंबर्स अपनी बेसिक नीड्स के लिए सेटिस्फाइड हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा भी नहीं कर पा रहे. हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस सो दैट जो पीपल हैं नॉट अनड्यूली एक्सप्लॉइटेड, डिसएडवांटेजेड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर. एक अगर हम फैक्ट्स को कंसीडर करें, मैनी चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जा रहे बिकॉज वो वर्क कर रहे हैं अपने आप को, अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए, और कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो पुअर हाउस होल्ड को बिलोंग करती हैं, उनको स्कूल से निकाल लिया जाता है ताकि वो घरों में अपने यंगर सिबलिंग की केयर करें जब उनके पेरेंट्स काम पर जा रहे हैं. इवन दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये गारंटी मिली हुई है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है. बट यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये तो फॉर्मल है. अगेन वो ये भी फील करते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है उसको
ऐसे चिल्ड्रन के लिए और भी कुछ ज़्यादा करना चाहिए, उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए और ये उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। हम ये देख सकते हैं कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम प्लेग्राउंड में हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर हम सफ़र कर रहे हैं डिसेबिलिटी, वी वांट स्पेशल प्रोविजंस। अगर हम अपनी बेसिक नीड्स को अफोर्ड नहीं कर रहे तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही हमारे लिए इनफ है। वी मस्ट बी एनेबल टू गो टू स्कूल, गेट हेल्प थ्रू प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जॉब्स, डिसेंट वेजेस, सब्सिडीज, हॉस्पिटल्स। दिस रिक्वायर्स दैट सम एजेंसी बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर फेयरनेस। यही रीज़न है कि बहुत सारी डेफिनेशन जो हैं दी गई हैं इक्वालिटी के, डिपेंड करती हैं कॉन्टेक्स्ट पर। अब अगर हम यहाँ पर ये स्टार्ट करें, व्हाट इज मेंट फॉर ऑल सेल्फ, देन प्रोसीड टू कंसीडर अदर, पुअर, डिसएडवांटेज्ड, सीनियर सिटीजन्स। हम ये डिस्कवर करते हैं कि जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स। पॉलिटिकल थियरिस्ट जो हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट्स बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड, और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। उन्होंने इसके ऊपर डिबेट की, एग्जामिन किया, डाइवर्स मीनिंग इसका ढूंढा, ओपिनियंस को सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी किया। जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इनफ है, पीपल को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है, हाउ फॉर एंड हाउ लॉन्ग शुड सच स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन। तो ये चीज़ें हम अपनी कंट्री में बहुत ही नेसेसरी हैं। ये टॉपिक यहीं पर फिनिश है, नेक्स्ट मैं कल स्टार्ट करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।